बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں طالبہ تھی جب میری سندھ کی ایک سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے گاؤں لے کر جانا چاہتی ہوں، وہاں پر بہت سارے کھیل تماشے ہوتے ہیں، ویسے بھی میری ایک کزن کی شادی ہے، تم اسلام آباد والی لڑکیوں کو گھر سے اجازت ملنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، سو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گاؤں کی بہاریں دکھاؤں گی جنہیں دیکھ کر تمہیں شہر بے رونق اور پھیکا لگے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی تھی، مجھے ایسی جگہ دیکھنے کا ویسے بھی بہت شوق تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ ہفتے والے دن ابا جان کی اجازت سے لے کر مجھے اپنے علاقے سیون شریف لے کر گئی تھی۔ اس کا گاؤں وہاں سے تھوڑا ہی آگے تھا۔ میں نے دیکھا یہاں کی عورتیں بہت زیادہ مختلف لباس پہنے ہوئے تھیں، ان کے سروں پر چادریں تھیں اور یہ بہت ہی باحیا لوگ تھے۔ خیر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں آ کر میری زندگی بدل جائے گی اور میں وہ کچھ دیکھوں گی جو ایک عام انسان دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس شادی کے دوران ایک اور خاص واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ یہ کہ میری سہیلی کے ایک دور پار کے رشتہ دار نے مجھے پہلے ہی نظر میں دیکھا تو پسند کر لیا، اور پھر جب میں وہاں سے واپس اسلام آباد آئی تو مجھے ایک نمبر سے میسج آیا۔ پیغام یہ تھا کہ میں تو آپ کو دیکھتے ہی فدا ہو گیا ہوں، دل اور جان سے آپ کو چاہنے لگا ہوں، بس اب آپ کی طرف سے ہاں کا انتظار ہے، پھر میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا۔ میں یہ پیغام دیکھ کر سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت اظہار محبت آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن سندھ بہت دور تھا، ہم اسلام آباد میں رہتے تھے اور اس اتنے دور علاقے میں جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، سو میں نے معذرت کر لی، پر میں کیا جانتی تھی کہ میری ایک فلمی کہانی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اگلے ہی دن وہ صاحب میری یونیورسٹی میں اپنی بڑی سی گاڑی کے ساتھ پہنچ آئے تھے، منتیں اور ترلے شروع کر دیے، کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں شاید مر ہی جاؤں، کوئی اندازہ نہیں میرا کہ آپ کو میری لاش دیکھنے کو ملے۔ میں اتنی جنونی محبت دیکھ کر ڈر گئی تھی، مجھے اس طرح کا جنونی انسان نہیں چاہیے تھا، لیکن میری سبھی سہیلیاں مجھ پر رشک کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ ایسا لڑکا تو بہت کم لڑکیوں کو نصیب ہوتا ہے، اتنی شان و شوکت، یہ گاڑیاں، محلات، تم پاگل تو نہیں ہو کہیں؟ یہاں پر اس شہر میں کیا کرو گی؟ ساری زندگی نوکری کر کے سڑتی رہو گی، اس سے اچھا ہے کہ ایک نواب تمہیں شادی کی پیشکش کر رہا ہے تو مان جاؤ۔ میں نے بھی دیکھا شہریار واقعی بہت امیر لڑکا تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی دیکھتا تو وہ یہی سوچتا کہ اس جیسی دولت ہمارے پاس ہو تو ہم خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھیں۔ میں نے اپنے اماں ابا کو بتایا، انہوں نے بھی جب شہریار کی دولت دیکھی تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شہریار ایک بہت ہی مختلف شخصیت کا مالک ہے۔ شہریار کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا، اس نے مجھے اپنی کافی ساری تصاویر دکھائیں، میں تو اس کو دیکھ کر دل ہی دل میں فدا ہو گئی، لیکن میں نے ظاہر کیا جیسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ خیر سے میں اس شادی کے لیے مان گئی تھی۔ میری شادی خیر و عافیت سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے دن میرے رشتہ داروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، اتنی شاندار شادی انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے 15 تولے سونے چڑھایا تھا، جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں اتنی بڑی بہار وہ بھی اس طرح سے آ جائے گی کہ میں خود کو سنبھال نہ پاؤں گی۔ خیر سے شادی ہو کر میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی، لیکن شادی کی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ سو جاؤ، شہریار صاحب کافی دیر سے آئیں گے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو اور شہریار صاحب کیوں دیر سے آئیں گے؟ بولی کہ ان کے دوستوں نے انہیں پکڑ رکھا ہے، وہ ان سے کوئی شرط منوانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا شرط؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ لڑکی جیسے یہ سب سن کر ڈر گئی ہو، بی بی جی مجھے معاف کر دے،
अगर कोई पूछे कि मैं यहाँ कमरे में आई थी तो मना कर दीजिएगा, वरना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कहकर वो वहां से भाग कर चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर इस छोटी सी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद होगी। ऐसा भी क्या कह दिया इसने। अभी मैं बैठी ही हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मेरी सास सिंधी चादर ओढ़े कमरे में नमूदार हुई। वो बहुत तीखी तबीयत की लग रही थी, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपने चेहरे पर तो जैसे कोई और ही नकाब ओढ़ रखा था। कहने लगी, बेटी तुम थक गई होगी, शहरयार अभी नहीं आएगा, से ही आएगा, तुम सो जाओ। ये सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया था। कहाँ वो शहरयार जो मेरे पीछे दीवाना था, और कहाँ ये जो शादी की रात मुझे देखने भी नहीं आया। क्या वो मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था? शायद नहीं, ये यहाँ की रस्म होगी। मैंने दिल में सोचा। गुस्ल खाना जो कि मेरे कमरे के साथ ही अटैच था, मैंने जाकर उसमें अपने कपड़े तब्दील किए, अपना मेकअप वगैरह साफ किया। मेरी आंखों से आंसू उतरने लगे थे। मैं तो शहरयार के लिए तैयार हुई थी, पर क्या फायदा जब उसने मुझे देखा ही नहीं। मैंने आरामदेह कपड़े जेब तन किए और कमरे को कुंडी लगाकर सोने के लिए लेट गई। तकरीबन 2-3 घंटे ही गुजरे होंगे। रात का ये न जाने कौन सा पहर था। शायद सुबह के 4 बजे होंगे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। जाहिर है अब घर में कोई और तो हो नहीं सकता था, मेरा शौहर ही होना था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक और आदमी खड़ा था। उसे देखकर मेरी हैरत और खौफ की इंतहा न रही। उनकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी। ये लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से मेरी सास अम्मा दौड़ी हुई आई। अरे बेटा, किस कमरे में जा रहे हो? तुम्हारा कमरा दूसरी तरफ है। मुझे गौर करने पर पता चला कि वो लड़का शायद मेरा देवर था, और मेरी सास उसे घसीटकर दूसरी तरफ लेकर जा रही थी। बेटी, तुम दरवाजा खोलने से पहले आइंदा पूछ लेना कि बाहर कौन है। असल में बच्चों को पता नहीं चलता, सब दरवाजों का डिजाइन एक जैसा है। मैं अपनी सास की चालाकी पर हैरान रह गई। नशे में धुत अपने बेटे को वो दूसरे कमरे में ले गई तो मैं सोचने लगी कि शायद मेरे शौहर ने भी इतना ही नशा किया होगा। मुझे ये सब बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। अब ब्याह कर यहाँ आ गई थी, इन लोगों पर तनकीद भी नहीं कर सकती थी, ना ही कोई एतराज कर सकती थी। इसकी वजह यह है कि मैंने अपने माँ बाप को रजामंदी दी थी कि मैं शहरयार से ही शादी करना चाहती हूँ। अब मैं किस मुंह से उन्हें कहती कि शहरयार के घर वाले तो न करते हैं। खामोशी ही इस चीज़ का हल था। मैं चाहती थी मैं देखूं शहरयार कैसा इंसान है। सुबह के 6 बजे शहरयार घर दाखिल हुआ। उसने नशा तो नहीं किया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान और थका हुआ हो। आते ही बिस्तर पर ढह गया। बोला, माफ करना, मुझे देर हो गई। दरअसल मेरे दोस्तों ने मुझे अपनी महफिल में बिठा लिया, और तुम्हें तो पता है हम गांव के लोग हैं, यहाँ पर ऐसी महफिलें बहुत होती हैं। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घोड़े देखने चला गया तो बहुत देर हो गई थी। मैं उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैं उठ गई थी। उसे मैंने कह दिया कि आप सो जाएं। कहने लगा, मैं 2-3 घंटे बाद उठूंगा, फिर बाकी मेहमान आना शुरू हो जाएंगे तो उनसे भी मुलाकात करना होगी। खैर वो सो गया। मैं सोचने लगी कि क्या शहरयार वाकई मेरे काबिल था, या फिर मैंने ये फैसला करने में जल्दी कर दी। पछतावा मुझे बार बार काट रहा था। मैं अकेली कमरे में क्या करती, उठकर बाहर चली गई। शहरयार के सारे मुलाजिम मेरी बहुत इज्जत करते थे। तभी मैंने देखा कि अम्मा जान यानी कि मेरी सास उस तरफ जा रही थी जहाँ पर घोड़े वगैरह बंधे होते हैं। मैं भी उनके साथ साथ चल दी। वहाँ जाकर क्या देखती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आला किस्म के घोड़े मुख्तलिफ नस्लों के अस्तबल में बंधे खड़े हैं। इनको देखकर मेरी आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गईं। ये घोड़े बहुत कीमती और महंगे मालूम होते थे। मेरे बाबा ने 1-2 बार सिर्फ एक दिन के लिए घोड़ा लाया था और उसका किराया 50,000 रुपए दिया था। तो फिर ये घोड़े तो इनकी अपनी मिल्कियत थे, यकीनन ये बहुत महंगे होंगे। मैंने दिल में सोचा। मेरी सास ने घोड़ों को प्यार किया, उनको चारा डालने के लिए नौकर से कहा, फिर वापस चली गई। अब वहाँ अस्तबल में मैं और सिर्फ वो मुलाजिम ही रह गए थे।
मुलाजिम बड़ी नजरें झुकाए खड़ा था। लगता था जैसे कहा, आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अफजल है। मैंने कहा, अफजल, ये घोड़े कहाँ जाते हैं? और क्या तुम बता सकते हो कि शहरयार रात को कहाँ थे? मेरी बात पर वो बहुत डर गया, चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, जी, ये घोड़े तो साहब शिकार पर लेकर जाते हैं और रात को वो अपने दोस्तों की महफिल में थे। घोड़ों की महफिल थी जनाब। उसने बड़ी हिचकिचाते हुए ये बात की थी। घोड़ों की महफिल, क्या मतलब है? मतलब मेरा कि घोड़ों को रक्स करने के लिए यहाँ से दूर ले जाया जाता है। शादी ब्याह के मौकों पर लोग अपने अपने घोड़े लेकर आते हैं, फिर उनका रक्स मेहमानों को पेश किया जाता है। जिसका घोड़ा अच्छा रक्स करता है उसको रकम दे दी जाती है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि ये महफिल कहाँ होती है? मेरी बात पर अफजल फिर चौंक गया। वो जी, घोड़े तो यहाँ करीब ही महफिल में रखे जाते हैं। कहाँ होती है ये महफिल? क्या इसी घर में होती है? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, घर में होती है? मैंने हैरत से पूछा। नहीं जी, घर में तो नहीं होती, उसके लिए अलग से खेमे लगाए जाते हैं। अच्छा, तो मुझे उन खेमों तक ले जा सकते हो? मेरी बात सुनकर अफजल डर गया। नहीं बीबी जी, मैं आपको उन खेमों तक नहीं लेकर जा सकता। क्यों? क्यों नहीं ले जा सकते? मैंने कदर सख्त लहजे में पूछा था। साहब ने मना कर रखा है। क्या मना किया है साहब ने? मैंने हैरत से पूछा। यही कि इन घोड़ों के बारे में आपको कभी पता न चले। मतलब, तुम्हें क्या लगता है मैंने पहले घोड़े नहीं देखे या मैं डर जाऊंगी? मैंने हंसते हुए पूछा। जी नहीं, बस उन्होंने मना किया है कि आपको घोड़ों की महफिल से दूर रखना है। अच्छा फजलदीन, बातें ना बनाओ, मैंने जितना कहा है उतना करो। कहने लगा, बीबी जी माफ़ कर दें, मैं साहब की नाफरमानी नहीं करता। हम तो बरसों से उनका नमक खाते आए हैं। अब मैं आपके कहने पर कैसे उनकी हुक्म अदूली करूं? आप भी मुझ पर रहम करें, मेरी नौकरी का मसला है। अगर मैं आपको ना करूं, आप मुझसे खफा होकर साहब से मेरी शिकायत लगाएंगी, तब भी मेरे लिए मसला होगा। वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन इसका नुकसान आपको नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे होगा। मैं उस मुलाजिम की मजबूरी समझ गई थी। वो दोनों ही सूतों में बहुत ज़्यादा मजबूर था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। मैंने कहा, चलो ठीक है, बस तुम मुझे ये बता दो कि वो रास्ता जाता किधर को है और ये घोड़ों वाली महफिल कब कब होती है? कहने लगा, हाँ ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको जाना खुद होगा। मैं आपके साथ हुआ तो मुझ पर इल्ज़ामात लग जाएंगे। उसने मुझे खुफिया तरीके से वो रास्ता बता दिया जहाँ पर घोड़ों की महफिल हर हफ्ते हुआ करती थी। कहने लगा, आप वहाँ पर कुछ भी गैर मामूली देखें तो उस पर कोई रद्द अमल मत दीजिएगा, वरना साहब चौकन्ने हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा अजियत भी देंगे। उनकी बातों में कोई भी बोले या दखल अंदाजी करे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा, ठीक है, तो इस बात की फिक्र भी नहीं करो, जो भी होगा मैं देख लूँगी। सो मैं उस जगह का रुख किया। फजल मुझे देख रहा था, लेकिन उसने यूं जाहिर किया जैसे वो मुझसे बिल्कुल अनजान है। मैं घोड़े पर बैठकर तो नहीं जा सकती थी, पैदल ही वहां से निकल पड़ी थी। घोड़े पर बैठना ना ही मुझे आता था, ना घोड़े को चलाना। गाड़ी भी मैं ड्राइव नहीं कर सकती थी। ड्राइवर के साथ जाती तो उस बेचारे से अलग सवाल होते। मैंने सोचा, अगर मैं पकड़ी भी गई तो यही कहूँगी कि मैं तो बस हवा ख्वारी के लिए जा रही थी। अफजल मुझे बार बार रोकने वाले इशारे कर रहा था, पर मैं ना रुकी, घर से चल पड़ी। उसने कहा था कि चेक पोस्ट आएगी, उसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर सीधा चलना है। चलते चलते मैं आगे पहुंच गई, मगर अभी मैं आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि एक गाड़ी तेजी से आकर मेरे पास रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो देखा शौहर मौसूफ गुस्से से मुझे घूर रहे हैं। ये तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम इस इलाके में अकेले घूम फिर नहीं सकती? यह हमारा इलाका है, इस्लामाबाद नहीं। तुम्हें नहीं सकती, यह हमारा इलाका है, इस्लामाबाद नहीं। तुम्हें पता है कि लड़कियों का बाहर निकलना कितना मायूब समझा जाता है। चलो मेरी गाड़ी में बैठो और घर चलो। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर इतनी दूर आ चुकी होगी। तुम्हें कुछ एहसास है मेरी इज्जत का? यहाँ पर 4 लोग मुझे इज्जत करते हैं, मुझे सलाम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने शौहर की इन बातों से बहुत डर गई थी। वैसे भी इस जगह पर
किसी भी औरत की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने शौहर के सामने बोले या फिर ज़ुबान दराजी करे। सो मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती चली गई, यहाँ तक कि घर आ गया। कहने लगी, लगता है तुम्हें घूमने फिरने का शौक है। अब वो अच्छे मजाज में मुझसे बातें करने लगे। तो मैं तुम्हें दुबई घुमाने फिराने लेकर जाऊंगा, तुम वहाँ देखकर सब कुछ खुश हो जाओगी। देखना तो सही, इस कदर खुशियाँ तुमने ज़िंदगी में पहली बार देखी होंगी। मैं भी खुश हो गई थी कि चलो, शहरयार का गुस्सा तो उतरा, पर मैं क्या जानती थी कि दुबई जाकर मुझे और कौन कौन से नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगले हफ्ते ही की टिकट करा ली गई। मेरे शौहर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। कहने लगे कि वहाँ जाकर तुम्हें मेरी तरह ही रहना होगा। जिस बात से मैं मना करूँगा तुम उस बात से रुक जाओगी। अगर तुम खामखा मुझसे जिद करोगी तो फिर हमारे घूमने फिरने का मकसद फोत हो जाएगा। मैं तुम्हें वहाँ पर लड़ने झगड़ने के लिए नहीं लेकर जा रहा, और वैसे भी हमारे ख़ानदान के मर्द लड़कियों को बाहर घुमाने नहीं लेकर जाते। ये तो मैं हूँ जो तुम्हारे प्यार और मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ, वरना तो लड़कियों को घरों में ही कैद रखा जाता है। मेरे जितने भी चचाजाद बहन भाई हैं वो सारे इसी तरह करते हैं। मैंने कभी किसी मर्द के साथ औरत को बाहर जाता नहीं देखा। हाँ, अगर अस्पताल में लेकर जाना हो या कोई इमरजेंसी हो तो तब औरत को बाहर ले जाया जाता है, वरना नहीं। मैं ये बातें सुनकर बड़ी हैरान हुई थी। मेरा शौहर मुझ पर एहसान कर रहा था, लेकिन मैं खुश थी कि चलो जो भी है वो मुझे घुमाने फिराने लेकर तो जा। लोग दुबई पहुंच गए। यहाँ की खुशियाँ वाकई काबिले दीद थी। मैंने देखा मेरा शौहर यहाँ आकर ऐसे घूम फिर रहा था। मैं हैरान हो गई कि मेरे शौहर के पास इतनी बेपनाह दौलत है। फिर एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। मेरा शौहर शाम को होटल में आया तो उसका मूड बड़ा अजीब सा लग रहा था। कहने लगा कि आज हमने रात को सहरा में जाना है। मैं उसको देखकर परेशान हो गई। मैंने कहा, आदिल, आप सहरा में रात गुजारेंगे, वो भी मुझे छोड़कर? कहने लगे कि हाँ, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होटल बिल्कुल भी महफूज है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत हो। तुम रात को यहाँ आराम से रह सकोगी। मैंने कहा, मैं सहरा में नहीं जा सकती क्या? आप मुझे वहाँ ले जाएं। कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? वहाँ तो घोड़ों की महफिल है। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगे। क्या मतलब घोड़ों की महफिल है? तो आप मुझे लेकर नहीं जाएंगे क्या? घोड़े देखना क्या नाजायज़ है? मेरी बात पर वो हंस पड़े और क्या नाजायज़ है? मेरी बात पर वो हंस पड़े और बोले, अरे मेरी भोली बीवी, ऐसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम समझा करो, वहाँ पर सिर्फ मर्द होंगे और दो चार लड़कियाँ होंगी। दो चार लड़कियाँ होंगी तो फिर तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। आपके बाकी दोस्तों की बीवियाँ अगर आ रही हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मेरी बात पर उसने माथे पर बल डाल दिए और बोला, मैंने जो कह दिया वो सो कह दिया। तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, मैं अकेला जाऊंगा और फिर सुबह वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको मुझे साथ लेकर जाना होगा। अकेली होटल में मैं रहकर क्या करूंगी? मेरे शौहर ने मुझसे बात नहीं की। वो तैयार होने लगा। मैंने भी अच्छे कपड़े पहन लिए। उसने कहा कि तुम यहीं रुको, वरना बहुत बुरा होगा। मैं उनके सख्त अंदाज से बहुत डर गई थी, सो मैं बैठ गई। पर मैं अपने शौहर के बगैर बिल्कुल भी वक्त नहीं गुजारना चाहती थी, सो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे मेरा शौहर वहाँ से निकला, मैं भी एक गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगी। मैंने उस आदमी को जब बताया कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर किसी महफिल में जा रहा है तो वो भी हंस पड़ा। उसने मेरे साथ साथ मेरे शौहर की गाड़ी का पीछा किया, यहाँ तक कि बहुत दूर एक सहरा में जाकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी थी। ये सहरा नहीं था बिल्कुल भी, ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई नई दुनिया आबाद है। समुद्र के किनारे बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक छोटा छोटा से खेमे लगाए गए थे। आसपास घोड़े भी थे। मैं समझ गई कि घोड़ों की महफिल ही होनी है। मैंने उस शख्स से कहा, तुम एक रात के लिए क्या मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी में रहने दे सकते हो? बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे अगर यहाँ पर खड़ा हुआ किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा करें, अपने शौहर से बात कर ले, उन्हें कह दे कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, वो आपको अपनी गाड़ी में ही बैठने दे देंगे। वैसे भी ये अमीर लोग हैं, इनके यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे लिए, मेरे जैसे आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा।
मैं हूँ भी पाकिस्तानी। आपको पता है कि हमारी बाहर के मुल्कों में इज्जत वैसे भी नहीं होती। मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया, बताया कि मैं तुम्हारे पीछे साहिल समंदर पर आ गई हूँ। उसका गुस्सा देखने वाला था, आवाज़ जैसे फट जाएगी। बोला कि मैंने तुम्हें मना भी किया था, अब तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? मैंने कहा तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठा दो, मैं बाहर नहीं आऊँगी, बस मुझे इत्मीनान रहेगा कि मैं अपने शौहर के करीब हूँ। वो गुस्से से आया, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर धकेला और बाहर चला गया। मैं परेशान बैठी थी, बस मैं रोने को थी। दुबली पतली सी थी, गाड़ी का शीशा खोलकर बैठ गई। मेरे शौहर ने गाड़ी को लॉक लगा दिया था, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। आधी रात का वक्त था जब मुझे मौसीकी की आवाज़ आने लगी। वो घोड़े तो वहीं पर बंधे हुए थे, घोड़ों का रक्स तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि मौसीकी और गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थीं। पहले तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर एक लड़की के चीखने की आवाज़ आने लगी। ये देखकर मैं चौकन्ना हो गई थी। मुझे लगा जैसे ये लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। गाड़ी का दरवाज़ा लॉक था, मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने एक अजीब काम किया, कोई देख नहीं रहा था। मैंने नीचे रेत में छलांग लगा दी थी। मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकली, भागती हुई उस खेमे तक गई जहाँ मेरा शौहर अंदर बैठा हुआ था और उसने कहा था कि यहाँ घोड़ों की महफिल है। मैंने देखा एक मासूम सी लड़की को 2-3 मर्दों ने दबोचा हुआ था, उनमें मेरा शौहर भी शामिल था। मुझे देखकर वो सारे ही हैरत ज़दा रह गए थे। मेरे शौहर ने सबको इशारे से पीछे हटने का हुक्म दिया। वो लड़की अपने कपड़े ठीक करने लगी, उसने रक्स वाला लिबास पहना हुआ था। मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, मेरे गले आकर लग गई, बोली कि मुझे बचा लो। मुझे हैरत हुई कि वो भी एक पाकिस्तानी लड़की थी और उर्दू बोल सकती थी। मैं हैरान हो गई। मैंने अपने शौहर को शिकवे भरी निगाहों से, उसने मुझे गुस्से से वहाँ से घसीटते हुए गाड़ी तक लाया और बोला कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे दोस्तों के सामने आने की? तुम नहीं जानती कि यहाँ पर महफिल हो रही है? ये कौन सी महफिल है शहरयार, जिसमें एक लड़की नाच रही थी, तुम सब उसे मिलकर दबोच रहे थे। बोला कि हाँ, तो ये तो हमारी रवायतें हैं, हमारा रिवाज ही ऐसा है। हम मर्दों की महफिलों में औरतें नाचती हैं। मेरी शादी की रात भी ऐसी ही महफिल हुई थी। वो तो मैंने तुम्हारी इज्जत में तुम्हें बताया नहीं, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? हमारी तो ये बहुत ही आम सी बात है। इस्लामाबाद की बातें और हैं, वहाँ के रिवाज और हैं, ये हमारा रिवाज है। मैंने कहा बात इस्लामाबाद की नहीं, इस्लाम की है। तुम जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो वहाँ इन बातों का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम तो कहते थे हमारी बहुत मजहबी ख़ानदान है, हमारे ख़ानदान की औरतें पर्दा करती हैं, तो क्या मजहबी होने का मतलब सिर्फ औरतों का पर्दा है? मेरा शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बुरी लगी। हम लोग वापस घर आ गए। उसने मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ दिया है। अब मुझे समझ नहीं आती मैं अपने शौहर से तलाक लूँ, खुला लूँ या फिर क्या करूँ? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं।